Hello all. Welcome to the current affairs sessions for prelims 2021 by IAS Network. So अब आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? We are starting with environment and ecology series, and in that we'll be taking, like the same way, the most important topics which were there in the news from the last one and a half years. Also, हम ऐसे statements को ढूंढने की कोशिश करेंगे which were there in the newspaper, which might be asked directly in the pre-exams. And we will also be taking your prelims 2021 paper discussion post the exam whenever it will be happening, and you will see कि कितना सारा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, and the same will repeat in the exam. So current affairs for environment and ecology are having a good weightage in our exam. Roughly around 15 to 20 questions are being asked directly or indirectly from the environment and ecology section. So बहुत important है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम. Also, if you genuinely like our videos, kindly give a thumbs up and do comment whatever you are facing, hurdles and problems in your preparation. I will be personally replying them on my own. So let's start. So if we talk about today, we will be starting with environment and ecology series. We will be first taking the journal aspects which were there in the news, and then we will be meeting and going towards the next technical details like COP meetings with respect to climate change in our subsequent lectures. So let's start with this video. So the first thing I have taken is BioRock. Now if you talk about BioRock, why it was in news? So the BioRock was in news because the Zoological Survey of India, the Zoological Survey of India, along with Gujarat Forest Department, is going to attempt for the first time in India a process to restore coral reefs. And the name of this process is called mineral accretion technology, or we also called famously it as BioRock. तो अब ये फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट हो रहा है इंडिया के अंदर, प्राइमरली बाय GSI एंड फॉर गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. अब हो क्या रहा है इसमें, अब हम देखते हैं कि पहले अगर हम बात करें तो बायोरॉक होती क्या है. तो बायोरॉक इज़ अ सब्सटेंस, ठीक है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन. अब इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन क्या है, विल बी लुकिंग इन अ स्मॉल वाइल. तो इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन से कोई सब्सटेंस बन रहा है, और ये इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन किसका हो रहा है, ऑफ मिनरल्स विच आर फाउंड इन द सी वाटर. ठीक है, ये मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, सी वाटर में. तो हो क्या रहा है कि वी आर एक्चुअली पुटिंग अ स्टील स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसे ये स्टील स्ट्रक्चर है यहाँ पे डायग्राम में, दिस सेम स्टील स्ट्रक्चर वी आर पुटिंग लाइक अ केज इनसाइड द वाटर बॉडी. अब हो क्या रहा है कि वी आर एक्चुअली पावरिंग दिस पर्टिकुलर स्टील स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी. ठीक है, उस बैटरी के अंदर देयर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एनोड विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज. हमें पता है, बेसिक साइंस में पढ़ा है कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैथोड, एंड कैथोड इज वी ऑल नो नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि दिस इज सी वाटर विच इज़ प्रिवलेंट एवरीवेयर. ठीक है, अब इस सी वाटर के अंदर, ठीक है, इन दिस सी वाटर वी हैव व्हाट, इन दिस सी वाटर वी हैव प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, वी हैव प्रेजेंस ऑफ carbonate ions. ठीक है, we have presence of calcium and carbonate ions. तो what we are doing is we are combining these calcium and carbonate ions from the sea water at cathode. अब इसको जब combine करेंगे तो Ca plus CO3 2 minus and Ca2 plus, we will be getting what we call as CaCO3. अब अगर किसी ने कोरल पढ़ रखा है तो हमें पता है कोरल्स क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं. ठीक है, एक्सोस्केलेटल होते हैं, और व्हेन दे डाई तो आफ्टर देयर डेथ दे गॉट लेयर बाय लेयर, उनका क्या है कि जमा हो जाते हैं वो, एंड दे गॉट स्टोर्ड इन अ प्लेस, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आफ्टर दे डाई इज़ प्राइमरली ऑफ CaCO3. तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, CaCO3. तो होगा क्या कि ये CaCO3 का आर्टिफिशियल जो सब्सटेंस बना है इस स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर, यहाँ भी CaCO3 आ गया, यहाँ भी CaCO3 आ गया, यहाँ भी CaCO3 आ गया. सो व्हाट हैपन कि जो आउटसाइड की कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, जो कोरल्स हैं विच आर स्टिल
लिविंग, ठीक है, कैन कम एंड कैन स्टिक टू दिस एरिया एंड ग्रो क्विकली। बिकॉज क्या देखा जा रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है CaCO3 का, व्हेन कोरल्स डाई दिस इज नाउ गेटिंग डिटोरिएटेड या फिर डिस्ट्रॉय या डैमेज हो रहा है इन रिसेंट टाइम्स, प्राइमरली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। फिर ओशन एसिडिफिकेशन इज ऑल्सो अ रीज़न, ठीक है। सो दीज आर प्राइमरी द रीजन्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस नेचुरल कोरल रीफ, जिसके ऊपर ऑल जो कोरल पॉलिप्स हैं अभी ग्रो कर रहे हैं। तो हमने क्या कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल वे से इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज़ बीन स्टार्टेड बाय फर्स्ट टाइम इन द गुजरात बीच एरिया, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो इसको ऑफशोर बनाना है, ठीक है, हमने वहाँ पे तो ऑनशोर की बात करी थी, अगर यहाँ पर ऑफशोर प्लांट है देन वी विल बी टेकिंग इट व्हाट, वी विल बी मेकिंग द इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रॉम अ सोलर पैनल। तो यहाँ पर क्या है कि सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्या है कि अंदर दे देंगे हम, व्हेन द प्लांट्स ऑफ दीज कोरल रिस्टोरेशन आर ऑफ शोर एंड नॉट ऑन शोर। तो ये देखो यहाँ पर स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इन सबको यहाँ पर किससे कर रखा है हमने कनेक्ट, दे हैव बीन चार्ज, नेगेटिवली चार्ज को हमने इस पर लगा रखा है स्टील स्ट्रक्चर्स पे, विच इज़ आवर कैथोड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ अलग से सर्किट पूरा करने के लिए एनोड बना रखा है। एंड देयरफॉर जो भी सी के अंदर क्या है मिनरल्स हैं यहाँ पर जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ CaCO3 ऑन विच कोरल्स कैन बी सबप्लांटेड और नियर बाय कोरल्स कैन ऑल्सो कम एंड टेक द न्यू हैबिटाट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर बायो रॉक और मिनरल एक्यूमुलेशन टेक्निक, ठीक है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्री एंड कैन बी आस्क्ड इन स्टेटमेंट्स। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, विच इज़ मैनग्रूव्स इन न्यूज़। अब मैनग्रूव्स की बात करें तो मैनग्रूव्स वाई वर देवर इन न्यूज़, बिकॉज महाराष्ट्र रिसेंटली, ठीक है, क्या हुआ, महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर मैंग्रोव ट्रीज एज स्टेट ट्रीज, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने कौन से टाइप का या कौन सी वेराइटी का मैंग्रोव ट्री को स्टेट ट्री बनाया है, इट इज़ कॉल्ड एज सोनरेशिया एल्बा, ठीक है। सोनरेशिया एल्बा नाम का मैंग्रोव स्पीशीज़ है, उसको महाराष्ट्र ने स्टेट ट्री बनाया है। अब इसको दिस सोनरेशिया एल्बा इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट वी नोन एज मैंग्रोव एप्पल, इसको मैंग्रोव एप्पल ही बुलाते हैं बिकॉज इस ट्री पे जो फ्लावर आता है विच इज़ मोर और लेस सिमिलर टू एप्पल के कलर जैसा, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैंग्रोव एप्पल, ऑल्सो इन लोकल पार्लांस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट चिप्पी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट चिप्पी, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर टाइप और वेराइटी ऑफ मैंग्रोव ट्रीज इज फाउंड मेनली ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, प्लस सम इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड अंडमान निकोबार, ठीक है, पर प्राइमरली मेनली फाउंड कहाँ होता है, वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर वेराइटी इज़ बीन फाउंड। अब क्या है कि एग्जाम के लिए कुछ और वेराइटीज़ यू शुड नो अबाउट मैंग्रोव्स। अब मैंग्रोव्स की कुछ और वेराइटीज़ हैं जैसे एविसीनिया, जैसे राइजोफोरा, जैसे रेड मैंग्रोव, जैसे सुंदरी फॉर विच सुंदरबंस हैव बीन नेम्ड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें और देखने जाएंगे तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज नैरोबी कन्वेंशन, ठीक है, नैरोबी कन्वेंशन है। दिस कन्वेंशन इज़ डन बाय UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब इसके अंदर क्या है, अंडर दिस नैरोबी कन्वेंशन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैव बीन डेवलप्ड फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फॉर वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। स्पेसिफिकली किसके लिए किया है, वेस्टर्न इंडियन ओशन के लिए। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट, इंडिया is not a part of it. So in pre statement might come that Nairobi Convention on Mangrove Ecosystem Restoration for West Indian Ocean is India is a part or signatory to it, which is not. It is not. अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो मैंग्रोव्स के बारे में तुम्हें पता ही है, ठीक है। दीज आर व्हाट, ठीक है, दीज आर प्राइमरली फाउंड इन द इंटरटाइडल जोन, ठीक है, इंटरटाइडल जोन में मिलते हैं। इंटरटाइडल जोन का मतलब क्या है, द जोन विच एग्जिस्ट बिटवीन द हाई टाइड लाइन एंड लो टाइड लाइन के बीच में क्या होता है, जो जोन होता है इंटरटाइडल जोन बोलते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। दे हैव स्टिल्ट रूट्स
ठीक है, दे आर आइसो फाउंड मोस्टली और ग्रो बेटर इन आइसो हेलाइनिक एनवायरमेंट, ठीक है. दीज आर प्लांट कम्युनिटीज विच आर मेसली फाउंड इन दिस इंटरटाइडल जोन. सो बहुत सारे और भी क्या है मैनग्रूव्स के हैं विच यू कैन रीड इन स्टैटिक पार्ट, बट फॉर एग्जाम पर्पस दिस इज इट. ठीक है, एरियल रूट्स होती हैं, स्टिल रूट्स होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं थ्रू विच दे डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब अगर हम बात करें मेजर मैंग्रोव रीजन्स की इंडिया के अंदर, सो देयर आर 3 मेजर रीजन्स ऑफ मैंग्रोव्स इन इंडिया. सुंदरबन विच इज़ इन वेस्ट बंगाल, कोरिंगा विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, एंड भीतरकनिका विच इज़ इन ओडिशा. ठीक है, सो दिस इज सुंदरबंस विच इज़ द मैक्सिमम एरिया. देन पोस्ट दिस इज कोरिंगा विच इज़ आवर गोदावरी कृष्णा डेल्टा नियर, तो दिस इज कोरिंगा. ठीक है, एंड दिस भीतरकनिका इज नियर द मैंग्रोव. ठीक है, अब अगर हम बात करें, सो दिस कोरिंगा वॉज ऑल्सो इन न्यूज़. अब वाई कोरिंगा वॉज इन न्यूज़, तो रिसेंटली क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वॉट constituted a 7-member committee, ठीक है, to fulfill requirements and norms, we can say requirements or norms for to get UNESCO World Heritage status. ठीक है, for these Krishna Godavari mangroves also called as Koringa mangroves which are there located near the Koringa Wildlife Sanctuary near Kakinada, ठीक है, विच इज़ इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो दैट्स वाई अभी क्या है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 7-member कॉन्स्टिट्यूशन करी है कमेटी को विच विल बी फुलफिलिंग द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर गेटिंग द स्टेटस ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस. अगर हम बात करें कोरिंगा मैंग्रोव्स की, तो यहाँ पर क्या है कि दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑलिव रिडले टर्टल, ऑल्सो कॉल्ड एज सी टर्टल. ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल की नेस्टिंग साइट है. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग साइट ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल. ठीक है, बट इट इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट इज अगेन आवर गहीर मत्था, देवभूमि, ऋषिकुल्या विच आर ऑल इन द ओडिशा कोस्ट. ठीक है, तो ऋषिकुल्या बहुत इंपॉर्टेंट है, गहीर मत्था इंपॉर्टेंट है, बट इनके बाद उड़ीसा कोस्ट के बाद कोरिंगा फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट ओलिव रिडले टर्टल साइट. सो दिस वॉज आवर सेकेंड टॉपिक. अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें नाउ, विच इज़ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, दिस सर्टिफिकेशन इज़ फॉर बीचेस. This certification is given by FEE, that is Foundation for Environmental Education. So it is what? It is an international non-profit organization. ठीक है, it is primarily situated in Denmark. ठीक है, डेनमार्क में situated है. Now this particular organization gives दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन 4 क्राइटेरियाज. अब 4 क्राइटेरियाज क्या हैं? एनवायरमेंटल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी बीचेज़ हैं वहाँ पर वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है, आर दे गिविंग प्रॉपर एनवायरमेंटल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन टू द पीपल और टूरिस्ट हु आर कमिंग देयर. देन इज़ द वाटर क्वालिटी इज़ ऑफ बेथिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है. देन थर्ड इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन का वहाँ पर खास ध्यान रखा जा रहा है. ठीक है, दैट इज़ सस्टेनेबल टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है वहाँ पर, सस्टेनेबल टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है नहीं जा रहा है वहाँ पर. देन देर इज़ सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीचेस, दैट इज़ वहाँ पर प्रॉपर एलोकेशन है या नहीं है किसका, कोस्ट गार्ड्स का और अदर बीच सिक्योरिटीज़, प्लस इज़ देयर इंस्टॉलेशन ऑफ प्रॉपर CCTV कैमराज एक्सेट्रा. तो सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी वहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है. सो आफ्टर फुलफिलिंग दोज 4 क्राइटेरियाज, देन ओनली दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गिव्स ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर बीचेस. अब अदर एस्पेक्ट्स क्या हैं कि चंद्रभागा, ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट चंद्रभागा विच इज़ अ बीच इन ओडिशा वॉज द एशियाज फर्स्ट ब्लू फ्लैग टैग बीच. ठीक है, इट इज़ टैग एंड नॉट सर्टिफाइड एंड नॉट सर्टिफिकेशन. तो एशिया के अंदर चंद्रभागा बीच जो है उड़ीसा का गॉट द फर्स्ट ब्लू टैग बट नॉट सर्टिफिकेशन.
कुछ उसमें क्या है, इन क्राइटेरियाज के अंदर कमी रह गई होगी, देयरफॉर इट गॉट द सर्टिफिकेशन बट इट गॉट द टैग. बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या है कि 13 प्रपोजल्स, दे हैव सेंड 13 प्रपोजल्स टू फी. उन्होंने फी को क्या है 13 प्रपोजल्स भेजे, ठीक है. एंड आउट ऑफ दीज 13 प्रपोजल 8 गॉट वॉट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. तो 8 को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है एंड दीज 8 आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो यू कैन मार्क दीज 8 प्लेसेस एंड लोकेशंस ऑन मैप. और ये इस प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ दीज 8 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस विच वी गॉट इन द फर्स्ट टाइम ओनली. ठीक है. तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट. ठीक है. अभी क्या है, इट इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बी अवॉर्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 8 बीचेस in a single attempt. So India is the only country in the world who got blue flag certification for 8 beaches in a single attempt. अगर हम बात करें कहाँ पर हैं 8 beaches, तो these 8 beaches are शिवराजपुर द्वारका गुजरात, then गोगला दीहू, then कसरकोड कर्नाटका, then पुदुबिद्री कर्नाटका, then कप्पड़ केरला, then रुशिकोंडा in आंध्र प्रदेश, then गोल्डन बीच which is पूरी उड़ीसा, then राधानगर बीच which is अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अब अदर आस्पेक्ट्स की बात करें, so these are important for pre, you can locate them on the map. At the same time you should also know कि these can come as places in news. अब other aspects की बात करें, so there was something divergence between this coastal regulation zones which are being given as notifications by the government of India, ठीक है, and ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. कुछ डाइवर्जेंस था. अब डाइवर्जेंस क्या था कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है इट डज़ नॉट अलाउ व्हाट कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन बीचेज एंड आइलैंड्स. बट अकॉर्डिंग टू आवर BFC, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, BFC रिक्वायर बीचेस टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक टॉयलेट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमराज एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पर एक टसल चल रही थी. तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हैज़ चेंज्ड व्हाट दीज CRZ नोटिफिकेशंस के अंदर उन्होंने दे हैव बॉट अ चेंज एंड नाउ दे व्हाट दे आर सेइंग दैट यू कैन डू द कंस्ट्रक्शन. ठीक है. बट दिस कंस्ट्रक्शन शुड बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लाइन. तो हाई टाइड लाइन है ये. ठीक है. इस हाई टाइड लाइन के 10 मीटर का डिस्टेंस यू कैन नॉट मेक एनीथिंग, बट आफ्टर दैट 10 मीटर डिस्टेंस यू कैन स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़. तो यहाँ पर ये इसमें एक और इम्प्रूवमेंट किया गया है. नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ कंसेप्ट ऑफ द डे. द फोर्थ कंसेप्ट इज 4 पर 1000 इनिशिएटिव. अब 4 पर 1000 इनिशिएटिव क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट था, इसको देखते हैं. तो दिस इज़ 4 पर 1000 इनिशिएटिव. ठीक है. अब हुआ क्या कि एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव, ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव है विच इज़ लॉन्च्ड बाय फ्रांस. अभी फ्रांस ने लॉन्च किया था कब, COP21 में, विच हैपन्ड इन 2015 एज आवर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. ठीक है. तो इसको फ्रांस ने इंटरनेशनल इनिशिएटिव बनाया था इन COP21 2015 में अंडर आवर लीमा पेरिस एक्शन प्लान. ठीक है. बट अब ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है, वाई इट इज़ रिसेंटली इन न्यूज़. अब इसको हम देखेंगे क्यों है रिसेंटली न्यूज़, पर इसके पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज़ टू अचीव एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4 पर 1000 और 0.4% ऑफ कार्बन स्टॉक्स. मतलब क्या है कि हमें हर साल 0.4% की एनुअल ग्रोथ रेट से, 0.4% की ग्रोथ रेट से वी नीड टू क्रिएट व्हाट एडिशनल कार्बन स्टॉक्स इन द फर्स्ट 30 to 40 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. ठीक है. तो सॉइल होराइजन्स होते हैं ABC. ठीक है. तो ABC, तो A के अंदर जो शुरू का 30-40 सेंटीमीटर का जो एरिया है, ठीक है, फर्स्ट 30 सेंटीमीटर का, यहाँ पर हमें व्हाट वी वांट टू ग्रो एट एन एनुअल रेट ऑफ 0.4% ऑफ कार्बन स्टॉक, और वी कैन से कार्बन सिंक भी बोल दो इसको. ठीक है. अब ये न्यूज़ में क्यों था, 2015 का इवेंट है ये, क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसका एक इंडियन वर्जन बनाया है. किसका, 4P इनिशिएटिव का इंडियन वर्जन विच इज़ कॉल्ड एज बैम्बूनॉमिक्स बनाया है. एंड दिस इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड इट इज़ अ ट्राइबल पर्सपेक्टिव ऑफ ensuring or increasing the carbon sinks. ठीक है. Primarily launched to combat desertification
and to fight climate change at COP14 at UNCCD, that United Nations Convention on Climate and Desertification कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, दैट इज़ टू शो व्हाट क्रूशियल रोल एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर सॉइल्स कैन प्ले इन फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो CO2 को अगर क्या है सॉइल्स कंबाइन करेंगी तो क्या है कि एग्रीकल्चर सॉइल की क्या हेल्थ बढ़ेगी, तो फूड सिक्योरिटी के लिए हेल्पफुल है। एट द सेम टाइम अगर हम कार्बन सिंक्स बना रहे हैं तो देर विल बी लेस CO2 इन द एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स देर विल बी लेस ग्लोबल वार्मिंग, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। अब ये एक एडिशनल इन्फोग्राफिक है विच आई हैव अटैच्ड, ठीक है। तो दिस इन्फोग्राफिक इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव विच वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, ठीक है। और ये क्या क्या बता रहा है कि हाउ सॉइल्स कैन स्टोर मोर कार्बन, क्या क्या रीजंस हैं। तो रीजंस की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, इसमें बोला है कि ज़ीरो टिलेज करो, ज़ीरो टिलेज एक्टिविटीज़ को प्रमोट करो, ताकि क्या है कि CO2 सॉइल से बाहर नहीं जा पाए। देन इट इज़ सेइंग दैट इंटरक्रॉपिंग को प्रमोट करो, ठीक है, ताकि सॉइल का न्यूट्रिएंट बेसिस और CO2 इंटैक्ट रहे उसके अंदर। देन पैस्चर मैनेजमेंट करो, बायोमास को इंटैक्ट रखो, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट को, इंटीग्रेटेड बायोमास एंड वाटरशेड मैनेजमेंट को फॉलो करो, ठीक है। सो दीज आर द टेक्निक्स थ्रू विच दैट पर्टिकुलर गोल विच इज़ बीन अ सजेस्टिव गोल ऑफ 0.4% इंक्रीमेंट इन कार्बन सिंक्स इज़ बीन गिवन इन फ्रांस टू ऑल द कंट्रीज़ कि आप ऐसा करो। और उसका इंडियन वर्जन क्या है, बैम्बूनॉमिक्स, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ बैम्बूज एंड बैम्बू के डाइवर्सिफिकेशन को हम लेते हुए क्या करेंगे, वी विल एंश्योर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। अब बॉन कन्वेंशन की बात करते हैं। अब दिस बॉन कन्वेंशन किसके ऊपर है, ये दिस इज़ ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़, ठीक है। सो अगर बॉन कन्वेंशन की बात करें, सो इट इज़ द ओनली कन्वेंशन दैट डील्स विद टेकिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ स्पीसीज़ फ्रॉम वाइल्ड, दैट इज़ टेकिंग, दैट इज़ माइग्रेशन हो रहा है आइदर थ्रू नेचुरल और थ्रू मैन मेड माइग्रेशन ऑफ दीज माइग्रेटरी स्पीसीज़, और उनका अगर हार्वेस्टिंग हो रही है कहीं और लोकेशन पे जाके, तो दिस इज़ ओनली कन्वेंशन विच डील्स विद इट। एट द सेम टाइम इट इज़ द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन, इट इज़ द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन अंडर UNEP। तो UNEP का ये सिर्फ एकमात्र ग्लोबल कन्वेंशन है, ठीक है, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़, ठीक है। तो फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़, ठीक है, कौन सी, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी, तो ये 3 टाइप की माइग्रेटरी स्पीसीज़ को टारगेट करता है। फर्स्ट जो टेरेस्ट्रियल है, दैट इज़ प्राइमरी लिविंग ऑन लैंड। सेकंड जो एक्वाटिक है, दैट इज़ प्राइमरी लिविंग इन वाटर बॉडीज और इन सीज। एंड थर्ड विच इज़ प्राइमरली इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ एवियंस, बर्ड्स, ठीक है। तो अब जो भी स्पीसीज़ इसने इनके अंदर आएंगी, ठीक, ऑल दीज स्पीसीज़ आर कवर्ड इन 2 अपेंडिसेस, 2 अपेंडिक्स में उसको बांट रखा है। अपेंडिक्स 1 की अगर हम बात करें तो अपेंडिक्स 1 के अंदर वो स्पीसीज़ होती हैं विच आर endangered or threatened with extinction, that their possible extinction can happen if proper conservation steps will not be taken। तो इतनी ज़्यादा endangered है, threatened है कि उनका extinction क्या है, बहुत नियर है, तो उनको अपेंडिक्स 1 में रखते हैं उन सारी स्पीसीज़ को। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीसीज़ रखी जाती हैं विच रिक्वायर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फॉर देयर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, दैट इज़ अगर उनके लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनाए गए तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर दोज स्पीसीज़ विच आर अंडर अपेंडिक्स 2। तो इसके अंदर 2 अपेंडिक्स हैं बॉन कन्वेंशन में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बॉन कन्वेंशन को बॉन समिट से कंफ्यूज नहीं करना है। बॉन समिट वॉज हैपन इन COP कन्वेंशन ऑफ पार्टीज 23, जिससे हमारा क्या निकला, तलोना डायलॉग निकला था, तलोना डायलॉग निकला था। एंड तलोना डायलॉग इज ऑलरेडी आस्क्ड बाय UPSC इन द लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर तलोना डायलॉग पे क्वेश्चन था। अब अगर हम बात करें कि ये जो COP हुई है, COP 13, ठीक है, किस पे हुई है, वही कन्वेंशन ऑन CMS, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ 13 हुई है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट फर्स्ट टाइम हैपन इन इंडिया, नॉट फर्स्ट टाइम बट रिसेंटली वाला जो हुआ है दैट हैपन इन गांधीनगर गुजरात, ठीक है, इन द मंथ ऑफ Feb 2020, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि इंडिया प्रपोज्ड कि इंक्लूड करो आप किस में, अपेंडिक्स 1 के अंदर कौन सी 3 स्पीसीज़, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और एशियन
एलिफेंट को। तो इंडिया ने क्या किया, प्रपोज किया था, और इंडिया की ये रिक्वेस्ट को क्या है, क्योंकि इंडिया में हो रहा था तो इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया, इट गॉट एक्सेप्टेड। दैट इज़ नाउ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन एंड एशियन एलिफेंट आर अंडर द अपेंडिक्स 1 ऑफ CMS या फिर बॉर्न कन्वेंशन, एंड these are the species which are endangered or threatened with extinction, and therefore they will be giving the highest strict protection level now। ठीक है, इस बार की जो थीम क्या थी, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लानट। सही बात है, दे रोम एंड दे माइग्रेट एंड दे कनेक्ट द प्लानट, एंड देयरफॉर वी शुड वेलकम देम होम। ठीक है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन का स्पेसिफिक ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बट वी शुड वेलकम देम एट होम। इसका जो मास्कॉट था दैट वाज GB या फिर GIB, दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थी और ये इसका मास्कॉट था। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन विच हैपेंड इन इंडिया। अब इसके अंदर बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी, दैट इज़ देयर वॉज गांधीनगर डिक्लेरेशन। तो इसमें क्या है, गांधीनगर डिक्लेरेशन लिया गया। अब गांधीनगर डिक्लेरेशन क्या है, इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो क्या थे, इट कॉल्स फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज एंड कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसने क्या बात करी है कि आपको क्या है कि दोनों को इंटीग्रेटेड मैनर में क्या है कि ट्रीट करना चाहिए, किसको, माइग्रेटरी स्पीसीज़ को और कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है कि रिसोर्सेज का ध्यान रखना चाहिए, आपको इसमें क्या है कि हैबिटाट का ध्यान रखना चाहिए ऑफ स्पीसीज़, आपको इसमें क्या है इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स का ध्यान रखना चाहिए फॉर दीज स्पीसीज़ टू माइग्रेट फ्रीली। ठीक है, तो इन सब के ऊपर इंटीग्रेटेड मैनर में आपको सोचना चाहिए। तो ये गांधीनगर डिक्लेरेशन में लिया गया। ऑल्सो गांधीनगर डिक्लेरेशन में ही क्या है कि 10 न्यू स्पीसीज़ वर एडेड टू कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ अपेंडिक्स में। ठीक है, तो 7 को किस में ऐड किया है, अपेंडिक्स 1 में। ठीक है, 7 को अपेंडिक्स 1 में ऐड किया है। तो 3 जो अपेंडिक्स 1 में डिस्कस हुए थे दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया। ठीक है, और हमारे पास बंगाल फ्लोरिकन हो गया और एशियन एलिफेंट हो गया। जो इंडिया ने प्रपोज किए थे वो तो 3 तो ये हो गए, और जो 4 बचे हैं, जो 4 हैं वो कौन से हैं, जैगुआर है, लिटिल बस्टर्ड है, एंटीपोडियन एल्बेट्रॉस है, और ओशन वाइट टिप शार्क है। तो एल्बेट्रॉस याद रख लेना और वाइट टिप शार्क याद रख लेना। जैगुआर एंड लिटिल बस्टर्ड ईजी टू रिमेंबर। बाकी 3 इंडिया ने प्रपोज किए थे वो हैं। तो 7 आर नाउ बीन अंडर अपेंडिक्स 1। ऑल्सो इसमें इंडिया ने क्या प्लेज किया था, इंडिया प्लेज टू फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटेड स्पीसीज अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर फ्लाईवे। और फ्लाईवे का नाम क्या है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। अब देखेंगे हम फ्लाईवेज क्या होते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, बट इसने इंडिया में प्लेज किया था कि हम फोकस करेंगे किस पे, ऑन कंजर्वेशन मेथड्स फॉर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में। ऑल्सो इसमें इंडिया रिलीज द फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स। स्टेट ऑन इंडियन बर्ड्स की फर्स्ट एवर रिपोर्ट निकाली है किसने, इंडिया ने, अंडर गांधी डिक्लेरेशन, और जो कि बॉर्न कन्वेंशन के अंदर ही गांधीनगर डिक्लेरेशन लिया गया था। तो उसी के अंदर चल रहा है सब। अब अगर हम बात करें स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स रिपोर्ट की, तो इसमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो हैं आई हैव ऑलरेडी जॉट डाउन। तो बस ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, इसी को क्या है कि यू नीड टू रिमेंबर एंड दीज कैन कम एज स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि मोर देन 50% ऑफ बर्ड्स, जो 86 बर्ड्स को हमने स्टडी किया उसमें से मोर देन 50% की जो पॉपुलेशन क्या है इज़ ऑन डिक्लाइन। ठीक है, 146 बर्ड्स को जिनको स्टडी किया दे आर एट ग्रेट रिस्क। ठीक है, तो 50% से ज़्यादा की तो क्या है बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। 146 बर्ड्स क्या है ग्रेट रिस्क पे हैं। इसमें जो मोस्ट अफेक्टेड कौन सी हैं, पॉपुलेशन ऑफ रैप्टर्स। अब रैप्टर्स कौन कौन से होते हैं, रैप्टर्स लाइक ईगल्स, हॉक्स। ठीक है, ईगल्स हो गया, हॉक्स हो गया, देन वी हैव काइट्स, दीज आर रैप्टर्स। इनकी पॉपुलेशन क्या सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। देन सी बर्ड्स की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, एंड ऑल्सो द बर्ड्स विच आर लिविंग इन स्पेशलाइज्ड हैबिटाट्स। स्पेशलाइज्ड हैबिटाट्स का मतलब क्या होगा, जो बहुत वेटलैंड के पास रहते हैं। ठीक है, तो वो वाले सारे स्पेशलाइज्ड बर्ड्स जो स्पेशलाइज्ड हैबिटाट्स के पास रहते हैं उनकी भी क्या है कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। ऑल्सो इसमें नंबर ऑफ बर्ड्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है नंबर ऑफ बर्ड्स की वो भी क्या डिक्लाइन पे है। और इसका डिक्लाइन कितना हुआ है, ऑलमोस्ट अराउंड 75% सिंस द ईयर 2000। ठीक है, तो 75% से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई नंबर ऑफ बर्ड्स की इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देयर हैज़ बीन अ स्टडी गेन, सिर्फ एक पॉजिटिव है, स्टडी गेन इन द पॉपुलेशन ऑफ पिकॉक विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल बर्ड है इंडिया की, इनकी पॉपुलेशन में स्टडी ग्रोथ हुई है। देन वल्चर्स की पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है। स्पेसिफिकली इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल कॉल्ड एज डाइक्लोफिनेक। ठीक है, डाइक्लोफिनेक का क्या है कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। ठीक है, विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसके चक्कर में क्या है कि वल्चर्स की पॉपुलेशन हैज़ बीन
ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड. बास्टर्ड्स जो हैं, ऑल टाइप्स ऑफ वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है. बास्टर्ड्स के लिटिल बास्टर्ड, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, सबकी पॉपुलेशन डिक्लाइन है. अगर हम बात करें हाउस स्पैरो की, तो हाउस स्पैरो की क्या है, इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली, इसको दिल्ली का स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है. एट द सेम टाइम हाउस स्पैरोज की जो पॉपुलेशन है हैज़ नाउ बीन स्टेबलाइज्ड बट आफ्टर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन. शुरू में इसका सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ, और डिक्लाइन का रीज़न क्या है कि इसका जो प्रे है दैट इज़ ऑन विच इट फीड्स, दैट इज़ इंसेक्ट्स, ठीक है, जो पर्टिकुलर इंसेक्ट से खाती हैं, वही क्या है क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन के चक्कर में डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गए थे. देयरफॉर इसकी पॉपुलेशन भी क्या होगी, डिक्लाइन हो गई थी. नाउ अब फ्लाईवेज की बात करते हैं, जो हम पिछले स्लाइड में हमने बात करी थी कि इंडिया अंदर गांधीनगर डिक्लेरेशन विल फोकस स्पेसिफिकली ऑन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे को फोकस करेगा, वहाँ पर कंजर्वेशन को इंक्रीज़ करेगा. फ्लाईवेज क्या होते हैं, फ्लाईवेज आर एरियाज, रूट और पाथवेज यूज्ड बाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, इसको फ्लाईवेज को किसके लिए यूज़ कर सकती हैं, दे कैन यूज़ इट फॉर ब्रीडिंग, ठीक है, ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करती हैं. पाथ तो होता ही है, रूट भी होता ही है, बट दीज एरियाज आर यूज फॉर ब्रीडिंग पर्पसेज एज टेम्पररी स्टॉपेजेस, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर विंटरिंग एरियाज, ठीक है. जब क्या है स्पेसिफिक सीजन्स आते हैं तो वहाँ पर क्या है कि दे कैन टेक मोर परमानेंट हॉल्ट. तो इसके लिए क्या है कि ये फ्लाईवेज को क्या है बर्ड्स यूज़ करती हैं, ठीक है. नाउ देयर टोटल नंबर ऑफ 9 फ्लाईवेज इन द वर्ल्ड. टोटल वर्ल्ड में 9 फ्लाईवेज हैं, और इसमें से 3 इंपॉर्टेंट फ्लाईवेज जो हैं दे पास फ्रॉम इंडिया. और ये तीनों कौन से हैं, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. अब सेंट्रल एशियन फ्लाईवे को अगर हम देखें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम नदर्न मोस्ट ग्राउंड जो है इसका वो क्या है, रशियन साइबेरिया है, ठीक है. और जो इसका सदर्न आस्पेक्ट है दैट इज़ वो कहाँ पर आता है हमारा, साउथ एशिया में और मालदीव्स में, और ऑल्सो नियर द डियागो गार्सिया, ठीक है. यहाँ पर डियागो गार्सिया जो इंडियन ओशन में एक ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी है, ठीक है. कहाँ पर है वो, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर वो डियागो गार्सिया है. तो ये इसके सदर्न मोस्ट लिमिट्स हो गई किसकी, ऑफ दिस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. अगर हम ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे की बात करें तो ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे के अंदर अगर हम बात करें तो सोर्स की, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अलास्का, ठीक है. और अलास्का से करते करते ईस्टर्न साइड में अगर जाएंगे तो ईस्ट एशिया तक जाता है ये. और इसके बीच में इंडिया कौन सा पार्ट पड़ता है, इंडिया का पार्ट पड़ता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, एंड ऑल्सो अ बिट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है. तो ये ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है जो कि इंडिया से पास होता है. और जो थर्ड है दैट इज़ एशियन ईस्ट अफ्रीका फ्लाईवे. अब इसका क्या है कि इट यूजुअली पासेस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट वेंट टिल मडगास्कर और साउथ अफ्रीका टिप. तो दीज आर द रफ बाउंड्रीज वी शुड रिमेंबर कि कौन कहाँ से पास हो रहा है. एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज़ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो कि हमने गांधीनगर डिक्लेरेशन में भी स्पेशल फोकस देके बोला है. अब लास्ट जो टॉपिक है आज का दैट इज़ रैप्टर MOU. तो रैप्टर MOU इज़ ऑल्सो अंडर एन एग्रीमेंट अंडर CMS, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ऑल्सो कॉल्ड एज बॉर्न कन्वेंशन, ठीक है. दोनों नाम सेम है, ठीक है. इसमें क्या बात कही गई है, ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ प्रे, ठीक है. एंड दीज माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ प्रे आर द रैप्टर्स. और रैप्टर्स के हमने अभी देखी थी कि रैप्टर्स मेनली आर व्हाट, ईगल्स, काइट्स, हॉक्स, ठीक है. और इनको क्या है कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने हैं कहाँ पर, इन द अफ्रीकन एंड यूरेशियन रेंजेस. इस पूरे बेल्ट में इसका ध्यान रखना है. ऑब्जेक्टिव क्या है, अगेन टू प्रमोट coordinated actions to maintain and conserve migratory species of prey in African and Eurasian region. अब इसका क्या है, इंडिया इज़ ऑल्सो सिग्नेटरी टू इट, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है. इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग बट इंडिया इज सिग्नेटरी टू इट, सो इंडिया विल ऑल्सो ट्राई टू पुट कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर दीज रैप्टर स्पीसीज, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशन ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. फर्स्ट सेशन था जो इंपॉर्टेंट जर्नल एस्पेक्ट्स हैं जो कि मेन हो सकते हैं इस प्रीलिम्स के लिए, आई हैव इंक्लूडेड. जो सेकंड इसके बाद जो एनवायरमेंट इकोलॉजी में आएगा, इन विच वी विल बी टेकिंग द एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. उसमें जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC, क्लाइमेट चेंज, और जो भी रिसेंटली में ट्रिपल कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ हुई हैं ऑन हमारा बेसल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन की जो ट्रिपल कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ हुई है, जो एक ही बार पहली बार हुई है, उसको भी डिस्कस करेंगे. देन विल बी डिस्कसिंग COP24, COP25
and connecting it with COP21 which happened in 2015 at Paris Climate Summit. तो उन सबको हम देखेंगे. तो stay tuned. Do like the video, comment on whatever the possible difficulties you are facing. We'll see you next time. So thank you and have a nice day.